Hello students, welcome to the next session of economics. Today we'll start the topic elasticity of demand in microeconomics. So in microeconomics we have already completed the four chapters till the indifference curve or till the topic demand we have completed. So we are aware about the law of demand, we are aware about the increase and decrease in demand, and we are also aware about the expansion and contraction of demand. And we also studied after that the shift and movement in the demand curves. After this chapter, demand, the next chapter is elasticity of demand. However, we are aware with the fact that there is a change in the demand when there are the change in the price of the commodity or the other factors changes. Okay, but how much that change is there? ये चेंज कितना परसेंटेज में होता है, ये कितने परसेंट होता है? वी नो दैट एज पर द लॉ ऑफ डिमांड कि व्हेन प्राइस विल इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज. वी आर अवेयर ऑफ दैट. जब प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस डिक्री होता है तो उसकी डिमांड उस प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो जाती है. दैट्स द फैक्ट वी आर अवेयर ऑफ. अब ये पॉइंट आता है कि कितना प्राइस घटने पर कितनी डिमांड में चेंज आता है. ये तो क्लियर हो गया कि व्हेन प्राइस विल डिक्रीज देन डिमांड विल इंक्रीज, और व्हेन डिमांड विल डिक्रीजिंग दैट मीन्स प्राइस इज इंक्रीजिंग. बट कितना परसेंटेज चेंज आता है या कितना प्राइस सपोज 10 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो कितनी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, कितनी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ये कहाँ से पता चलता है हमको? ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पता चलता है. अब इलास्टिसिटी का मतलब होता है, सबको पता है, सबने रबर बैंड देखी है, इलास्टिक्स देखी हैं. इनका मीनिंग होता है कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ हो रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी लोग डिमांड कर रहे थे, सपोज़ पहले 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे जब प्राइस 10 रुपीज़ था, अभी 12 रुपीज़ पर कितनी डिमांड करेंगे? क्या 5 रुपीज़ रहेगी, या प्राइस बढ़ा है तो कम होकर 4 रुपीज़ हो जाएगी, या फिर या फिर बिल्कुल ही ज़ीरो डिमांड हो जाएगी प्रोडक्ट की? तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में. सो आई होप यू आर getting that point. You all are. The next is कि when we talk about the elasticity of demand, so in this book, in this class 11th, there are 3 types of elasticity of demand: price elasticity of demand, income elasticity of demand, and cross elasticity of demand. But in detail we will do the price elasticity of demand. We'll do this concept in detail. Rest of the concepts are for the references. We'll go through them just for the understanding, but with deep knowledge we'll complete the topic price elasticity of demand. So it is important to understand first ki what we are going to study in this chapter. Okay, so that is your next part, ki what is there in this chapter. First of all, we'll talk about the learning objectives of this chapter, like why we are reading, why we are doing this chapter. So first of all, we'll study in this chapter meaning of elasticity of demand. What is the meaning of elasticity of demand? Second, we'll discuss about the types of elasticity of demand. There are various types of elasticity of demand. We'll discuss those. After that, as I said, we'll discuss in detail price elasticity of demand. Income and cross elasticity of demand are also the part of the syllabus, but just for the knowledge. But in detail we'll do the price elasticity of demand. Then in this topic we'll study the kinds or degrees of price elasticity of demand. There are 5 degrees or 5 kinds. We'll discuss them in detail. After that, the last topic will be in this chapter, method to measure price elasticity of demand. जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उसको हम कैसे मीज़र करते हैं, कि कितना प्राइस चेंज होने पर कितनी क्वांटिटी की वैल्यू आएगी, या अगर क्वांटिटी इतनी कम हुई है तो प्राइस में कितना चेंज हुआ होगा, इसको हम कैसे स्टडी करते हैं. तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड्स होते हैं स्टडी करने के लिए, जैसे परसेंटेज मेथड, जियोमेट्रिक मेथड, या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. अब हमारे सिलेबस में कौन सा है? परसेंटेज मेथड. तो हम परसेंटेज मेथड को डिटेल में करेंगे. ओके, और लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसे सिमिलरली हमने डिमांड चैप्टर में डिस्कस किया था व्हाट इज़ दी
what are the factors which affect the demand of a commodity. So I hope you are getting what are the topics we'll cover in this chapter. Yes, here is the opening of the chapter. The chapter name is elasticity of demand. So in the previous chapter we have studied that law of demand states negative relation between price of a commodity and its quantity demanded. हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड बताता था कि नेगेटिव रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन होता है जब भी किसी प्राइस कमोडिटी का किसी गुड का बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं वो कम हो जाती है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल. अब व्हाट आर दोज अदर थिंग्स, ये हमने स्टडी किया था. पी एक्स था, पी वाई था, पी जेड था, रिलेटेड गुड्स का प्राइस था वो कांस्टेंट रहे, इनकम कंज्यूमर की कांस्टेंट रहे, उसका टेस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, कोई सोशल या पैंडमिक या कोई इमरजेंसीज नहीं आनी चाहिए या कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, तो ये लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता रहता है. सो दस लॉ ऑफ डिमांड टॉक्स अबाउट डायरेक्शन ऑफ चेंज, इट डज़ नॉट डिस्कस डिग्री ऑफ चेंज. लॉ ऑफ डिमांड ने बताया कि जो डिमांड है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि डिमांड की डायरेक्शन इंक्रीज़ होगी या वो ऊपर जाकर इंक्रीज़ हो रही है, नीचे आके डिक्रीज़ हो रही है, ये बताती है. बट डिग्रीज़ नहीं बताती है कि इट नॉट डिस्कस द डिग्री ऑफ चेंज, कि कितना चेंज होगा. सो इन अदर वर्ड्स इट डज़ नॉट इंडिकेट हाउ मच, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दैट पॉइंट, दिस इज़ द कोर पॉइंट. It does not indicate how much change in quantity demanded will take place due to a given change in price of the commodity. इसका मतलब कि प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, इस वजह से क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा ये नहीं बताता लॉ ऑफ डिमांड. या डिमांड चैप्टर में ये नहीं पढ़ा था. ये पढ़ा था कि अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी, नॉर्मल अगर कंडीशन है बीइंग इक्वल अदर थिंग्स, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड हम इंक्रीज़ करेंगे. सो फाइनली देयरफॉर द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब जो एक कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इज़ यूज टू मेज़र द मैग्नीट्यूड ऑफ डिग्री ऑफ चेंज. क्या करता है, कितना मैग्नीट्यूड, कितना परसेंट चेंज आ रहा है, कितना डिग्रीज़ में चेंज आ रहा है इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. कितना चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से किसी भी कमोडिटी में, इसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस करते हैं. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो किन किन वजह से हमारी डिमांड चेंज हो सकती है, वो 3 मेजर थिंग्स हमने अभी डिस्कस की थी. कि प्राइस हो सकता है मेजर, इनकम चेंज होने पर हो सकता है, प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने पर हो सकता है, और जो दूसरी चीज़ें होते हैं आउटर फैक्टर्स होते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी जिसे हम बोलते हैं, उनकी अदर थिंग्स के प्राइस बढ़ने की वजह से, अदर सर्कमस्टांसेस की वजह से यहाँ पर चीज़ों की डिमांड में चेंज हो सकता है. तो ये 3 कंसेप्ट हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी. तो यही सेंटेंस कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड और डिग्री ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, अब ये तीनों बातें आ जाएंगी इसमें, चेंज इन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. तो ये तीनों चीज़ें किसी भी कमोडिटी के डिमांड को, तीनों फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब जो अदर गुड्स हैं उनकी वजह से मेन गुड के प्राइस में चेंज आ जाना. So now we'll study about the elasticity of demand. कि actually what is elasticity of demand in detail. So demand of a commodity is determined by many factors like change in own price, income of consumer और price of related goods. तो जो चेंज होते हैं डिमांड में वो मेजरली, या जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, बदल जाती है, उसमें चेंजेस आते हैं 3 रीज़न्स की वजह से. पहला रीज़न होता है ओन प्राइस, सेकेंड रीज़न होता है कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर इफ चेंजिंग, और थर्ड होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, जिसे हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. नाउ द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ
responsiveness of the quantity demanded of a good to a change in any of the factors affecting its demand. So this is now we can say a definition of elasticity of demand. अगर इसको हम ज़्यादा डिटेल में देखते हैं तो elasticity of demand refers to, this is the definition, note down on your copies. Take your pen, paper, copy pen, pencil, and note down the term elasticity of demand refers to the percentage change in demand of a commodity due to percentage change in any of the factors affecting demand of that commodity. What it means? परसेंटेज चेंज, अब हम दो रेशियो कह सकते हैं कि ये रेशियो होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो है, परसेंटेज चेंज कितना आता है डिमांड में, क्वांटिटी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ये डिपेंड करता है जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड को इफ़ेक्ट करते हैं उनके ऊपर, कि कितना परसेंट उनके अंदर चेंज आया है, उस वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाती है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर होता है कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सपोज़ कोई प्रोडक्ट है, आज एक टी जग का जो कप है वो 10 रुपीज़ का पिक सोल्ड हो रहा है, कल अगर वो टी का कप 10 से 20 रुपीज़ का हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा? हम डिमांड अपनी इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे? फर्स्ट फैक्टर प्राइस, हम डिक्रीज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट, आज हम अर्न करते हैं 1000 रुपीज़ ओनली, कल हम स्टार्ट कर दे अर्न करना 10 लाख रुपीज़, तब हम मार्केट के अंदर एक टाटा टी बिक रही है और एक ताजमहल टी बिक रही है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? सपोज़ टाटा टी ही बिक रही है, पहले हम क्या करते थे, हमें चाय पसंद थी बट हम दिन में एक कप पीते थे क्योंकि चाय कहीं ना कहीं 1000 रुपीज़ की इनकम में हमारे लिए पीना मुश्किल था। बट जब 10 लाख रुपए की इनकम हो गई है तो हम क्या करेंगे? अब अपने कंजम्पशन को सेम टी प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि जो एक अदर फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है, हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को, जो चेंज कर देगा डिमांड पैटर्न को। थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी। अब टी का प्राइस 10 रुपीज़ था और कॉफ़ी का प्राइस भी 10 रुपीज़ था। अब सपोज़ कॉफ़ी का प्राइस 5 रुपीज़ हो जाए तो लोग क्या प्रेफर करेंगे? कॉफ़ी प्रेफर करेंगे। और इस क्रॉस इलास्टिसिटी या अदर रिलेटेड गुड की वजह से इस टी की डिमांड में बहुत कमी आ जाएगी। तो आई होप यू आर गेटिंग दैट पॉइंट। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये डेफिनेशन हो गई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। सिमिलरली अकॉर्डिंगली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 3 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड होती है इनकम इलास्टिसिटी और थर्ड होती है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है कि प्राइस की वजह से हमारी डिमांड में कितना परसेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ, या कितने यूनिट हमने बढ़ा दिए डिमांड करना है, कितने यूनिट्स को कम कर दिया है। ये पहले का मीनिंग हो गया। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होगा कि अगर टी प्रोडक्ट है और हमारी इनकम बढ़ गई है तो उस प्रोडक्ट को हम कंज्यूम करना भी इंक्रीज़ कर देंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। थर्ड फैक्टर है। और अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी में कोई अदर प्रोडक्ट है, उसकी वजह से टी की डिमांड जो है कम हो जाएगी। सपोज़ कि टी में यूज़ होता है प्रोडक्ट शुगर, शुगर का प्राइस बहुत महंगा हो जाए तो हम क्या करेंगे? टी की डिमांड को कम कर देंगे। दूसरा हो सकता है कि टी और कॉफ़ी दो सब्स्टिट्यूट गुड हैं, तो अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो जाए टी की डिमांड कम हो जाएगी, और कॉफ़ी का प्राइस बहुत महंगी कॉफ़ी मिलने लगे तो लोग टी प्रेफर करेंगे और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आई होप इन शॉर्ट यू आर गेटिंग दीज कंसेप्ट्स। इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, विल डिस्कस अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कॉन्सेप्ट, then after income elasticity of demand, cross elasticity of demand, and the meaning and kinds of degree of price elasticity of demand. अब ये समझिए बेसिकली हमको जो डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक को पढ़ना है, योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस चैप्टर. ओके, so students, see you in the next session, and if there is any queries you can ask, and there are already the online session have been started
So with your queries you can come in the sessions. Okay students, thank you.